नमस्कार, मैं राहुल कुलकर्णी, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। और फिर एक बढ़िया सा एपिसोड लेके हम आपके सामने हैं। एक स्टार्टअप है पुणे की, और भाई साहब आप लातूर से हैं। और आप भाई साहब नागपुर से हैं, और भाई साहब आप इंदौर से हैं। तो लातूर कर थोड़े आगे आ जाइए। अच्छा, बहुत से दर्शक जो ये बताते हैं कि हम लोग मराठी में क्यों नहीं बोलते हैं। भाई ये मल्टीलिंगुअल है। वी आर ऑल्सो डूइंग दिस इन इंग्लिश, वी आर ऑल्सो डूइंग दिस इन हिंदी, अँड वी आर ऑल्सो डूइंग दिस इन मराठी. सो सबसे पहिले तो लातूरकर मला सांगा, ही तुमची काय वेगळंच आणलंय तुम्ही हे प्रोडक्ट? बिलकुल वेगळं आहे. हां. भारतामध्ये बनवलेलं इलेक्ट्रिक सायकल आहे. हां. आणि आपण जिथे उभं आहोत हां. एक्झॅक्टली इथे आपण याचं पूर्ण प्रोडक्शन करतोय. हां. आपल्या हे पकडा जरा तुमच्या हातात. हे लातूरकर हा जो व्यक्ती आहे ना, आणि हे नागपूरकर, आणि हे अमेझिंग आहे तो. नाउ आय कॅन प्रोक्लेम दिस कंपनी इज ऑल्सो बिलॉंग्स टू MS धोनी. MS धोनी, यस. ये MS धोनी की कंपनी है, और आप ये डूडल की, मुझे लगता है वो इसकी भी प्रमोशन इसी करते के हैं. ऊपर चल के MS ने ये वीडियो वायरल किया था Correct. पूरे इंडिया में. करेक्ट. और MS जिस तरीके का व्यक्तिमत्व है, बहुत ही शांत, कूल. तो मैं भाई साहब से पूछ रहा था कि भाई इन्होंने कितने सवाल आपसे पूछे, तो कितने सवाल आपसे MS ने पूछे? So I think एक बहुत ही So how it started initially? I mean, tell me how you approached to MS Dhoni first. right. So I think when He's a wonderful guy. The way he narrates everything to me was a classy one. thank you, you're very kind. I think जब एक brand ambassador किसी So से start this in English because we are to sure. So I think when a brand ambassador associates with a company, right, it's his name on stake as well. And MS is not just a normal brand ambassador. He's the legend of not just the cricket world, right? He's a symbol of India. So when he was getting associated, he wanted to make sure that certain things are in check. Correct. Like back So in the there day. would have been a certain thought process even with all you Yeah. guys, that why to select MS? I think there were two reasons behind it. One, I think there was nobody who could match him in cutting through the classes across the country. Correct. Right? Bollywood is restricted to Bollywood itself. Then you have Tollywood and so many other industries also. In cricket also, you will have regional fans, right? But anywhere that I mean, this is the biggest testimony, and every person can see that any stadium MS plays in, it turns yellow. Yeah. For MS. So for Dhoni, like this. So for us, I think that made us realize not just the class-wise, the top 1% of the India, but at the bottom level in a village, the smallest kid also loves MS. At the same point in time, right And from also north, his passion for the bikes. insane. I mean, the way he's associated with bikes and automobile as a whole, I think there are very few people, you can count them on fingers, who reflect it. And for us, MS did the job. And I think a great. And then who approached to him? So And there is also one very interesting story. Would you like to share with this? regarding. Regarding whose father actually? Oh yeah. That I picked up, and this is a very fabulous and fantastic story you need to hear. So Rajiv wouldn't like this. I hope he doesn't watch this episode. So Raju, please excuse us. But in the movie MS Dhoni, the character who's bowling to MS and getting hit for sixes. The railway officer, I think. That's right. Who brought him into the railway? In real life, it's Rajiv's father who got MS into the railways, and I'm pretty sure he must have got hit for sixes. How good MS plays. But for us, the association goes deeper than just a brand ambassador, right? It is somebody, we find him as a part of our family. I think it reflects in the way he treats us, in the way he has guided us. Even his knowledge beyond cricket to business level is insane, and I think it reflects in the way he has achieved things in life. So one scene is there. Yes. Explain again this. What was the scene and how you approached to Dhoni and how it helped it out? So I think when we reached out to MS, the whole idea was him telling us about the industry itself. Correct. And he was talking about how motor, display, battery charger that we are making in our factory, and you can see right behind you, is not getting manufactured anywhere in the world, including China. And that's when he decided that possibly it's a big move that we are making, and it's time for him not just to sign us, but also invest into us. So that became a part of the deal, and we were so honored and privileged that we became one of the few places where he chose to invest. But tell us the movie scene. Yeah, so I think in the movie, when he comes to bat and he's getting selected for, it's his trial for railways, right? So when he goes for the trial, guy comes, the railway officer comes, who himself want to test MS, is he good enough? And then he starts bowling. वो एक ball डालते हैं और वो miss करते हैं, दो ball miss करते हैं. वो बोलते हैं slow डालूं क्या? And he's like no, bring it on. And then he starts smashing him, and he smashes him so much for the success. That's his first selection in railway. I think one of his first jobs also.
I mean, of course, in movie it must have been shown the way it is shown, but I'm not surprised that the person of his caliber is succeeding everywhere in life. नहीं, इसलिए मैंने ट्रेस किया, वो जो मूवी में दिखा है बिल्कुल उस तरीके के सवाल एमएस ने आपको पूछे है ना। जी। हाँ, तो So- सवाल एमएस का था कि ये कितना इंडियन है, Right. कितना सेफ है, क्योंकि उस Right. समय तो बहुत बाइक का इंसिडेंट्स भी हो रहा था, True. इधर जली है, वहाँ True. पे हुआ है। हाँ। True. So before he came on board, I think he had basic questions about two things. One, if he is associating, is the bike safe enough? Because his name is directly involved. We showed him less than 1% of service failures for us, and no accidents happening on the bike, which was a big testament. The second question that he asked us was, "Boss, what is the vision when it comes to the brand?" And our vision was global, and it wasn't restricted to India. And I think there were a couple of questions here and there which made sense to him, which made it possible for him to think about investing in the first place. Fine. And for us today, as we stand, he is genuinely a big part of what family is. And of course, you would have seen we've got his portrait pasted everywhere in office. It's a 2 lakh square feet establishment. I think more than 250 people are working here. All are young, very positive vibe is here. And also I like the environment they have been created here. I wanted to ask him. Please. तो ये दो सवाल है मेरे मन में। अच्छा, मराठीत विचारू का? हिंदी। अच्छा, ये नागपुरकर है भाई साहब, नागपुर से हैं, जहाँ के चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के श्री देवेंद्र फडणवीस जी। आप सुन रहे हैं, देखिए भाई साहब हिंदी में बोल रहे हैं। अच्छा, एक तो थोड़ा अलग सवाल है, एक है कार्बन क्रेडिट वाली बात, है ना, और दूसरा है हेल्थ कॉन्शियसनेस। तो इससे स्टार्ट करते हैं। इससे आपको कहाँ लगता है कि ये स्टार्टअप आपने 2019 में स्टार्ट किया था और अब 2025 में हम लोग खड़े हैं? आई थिंक सबसे पहली चीज, राइट, साइकिल को लोग हमेशा से एक हेल्थ एंड फिटनेस प्रोडक्ट जैसे ही देखते थे। Correct. अब क्या होता है, आज हमारे प्रोडक्ट के साथ लोग अपना हेल्थ एंड फिटनेस अपने कम्यूट एवरीडे लाइफस्टाइल के साथ जोड़ रहे हैं, जिसके वजह से वो ज्यादा हेल्दियर हो पा रहे हैं। Correct. पहले आप साइकिल के साथ 2, 3, 4, 5 किलोमीटर तक जा सकते थे, आज हमारा प्रोडक्ट लेके आप 15 किलोमीटर जा सकते हैं, राइट, विच मेक्स यू मच मोर हेल्दियर। नॉट ओनली यू हेल्दियर, द एनवायरमेंट ऑल्सो हेल्दियर, एंड दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू एम, राइट। ग्लोबल इट इज ऑलरेडी प्रूवन कि यार इलेक्ट्रिक साइकिल is much more healthier, not only to yourself, to the environment as well, and that is what we are working towards today. लेकिन उसमें जो आपने जो इन्वेंशन किया है, जैसे अभी इसकी तो हम लोग बात करना ही अभी भूल गए हैं, थोड़ा सा उस पर भी काम जी। लेकिन जो बच्चा साइकिल लेके जा रहा है उसका मैसेज आपको जाता है। जी। थोड़े बीएमआई की भी उन्होंने बात की, मुझे पता नहीं उतना बीएमआई हम लोग बता पाए, तो कैलोरी बर्न जो यूजुअली हमारे आईफोन में वगैरह, तो वो क्या इन्वेंशन है इसमें? तो इसमें बेसिकली हमारा एक डिवाइस आता है अमीगो नाम का। ओके, वो क्या करता है ना, वो आपका बाइक ट्रैक कर रहा है। आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक भाई साहब पेरेंट, इस तरफ आइए, आपको है इसमें। हाँ, आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक पेरेंट डरते हैं अपने बच्चों को रोड पे भेजने से, राइट। वो स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, तो दे नीड टू ट्रैक एंड दे नीड टू नो वेयर देयर किड इज, सेफ्टी एज अ फीचर, राइट। दूसरा, बाइक एक स्पीड पे चलती है, तो एज अ पेरेंट आप कंफर्टेबल नहीं होगे कि बाइक 25 की स्पीड पे चले। यू कैन लॉक योर स्पीड कि 10 की स्पीड पे चलाएगा मेरा बेटा, 15 की स्पीड पे चलाएगा, ताकि आई नो आई कैन गवर्न दैट। दिस बाइक कम्स विद फॉल डिटेक्शन मैकेनिज्म। उसका मतलब क्या होता है कि कभी भी बाइक गिरी, कोई मिसहैप हुआ, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ, तो इमीडिएटली पेरेंट गेट्स एन SOS कॉल ऑन इट। सो बाइक इनहेरेंटली सेफर इन इटसेल्फ। तो नॉट ओनली दिस, राइट, नाउ पेरेंट्स आर फोकसिंग ऑन किड्स हेल्थ। तो वो किड्स हेल्थ मॉनिटर कैसे होगी कि यार बच्चे ने कितना पेडल किया, कितनी कैलोरीज बर्न किया दिन में, ऑल ऑफ दैट कैन बी मॉनिटर्ड थ्रू योर स्क्रीन, थ्रू योर फोन, and that is the feature that we are trying to build. Correct. That is what comes with our bike, and it is one of the only features in the world which is available. We have been able to build as eMotorrad. That's one of the kind. You guys are in the world. wonderful. You guys are Thank you. अच्छा, Thank मैं आपके दर्शकों को बता दूं, ये इनका प्रमोशन नहीं है जो यूट्यूबर्स करते हैं, ये बिल्कुल उस तरीके का सेगमेंट नहीं है। और आपके मन में अगर कोई परहेज है, कोई सवाल है, तो आप सीधा इनसे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छी सी वाइब्रेंसी महाराष्ट्र में जो बनी है वो हमारे स्क्रीन पे आ जाए। और जो आप देख रहे हैं कितने हमने एपिसोड्स किए हैं, महाराष्ट्र के जो हुज हू हैं, जैसे हमने डिफेंस के बंदूक भी आपको दिखाए हैं, एल्यूमिनियम मैन दिखाया, फिर कोई ऐसी सीक्रेट चीज़ें हमने आपको दिखाई है। तो ये ज़रूरी है कि प्लीज़ ये आप अपने मन में रखिए, ये बिलकुल प्रमोशन नाही आहे। आणि लातूरकरांना मी हे विचारणार आहे, लातूरकर, आणि मी तुम्हाला ह्यांचा प्रोडक्ट दाखवतो। आय एम अमेज की काय बनवलं ह्या लोकांनी।
आणि त्यांचं माझं नातं पण क्लोज आहे. त्यांच्या आई, तुमच्या आई कुठे होत्या मुख्याध्यापिका? देशी केंद्र विद्यालय लातूर, ज्यांनी लातूर पॅटर्न फेमस केलं. करेक्ट. आणि यांच्या आई ज्या देशी केंद्राला होत्या तिथेच माझ्या सासूबाई पण मुख्याध्यापिका होत्या. हे कारण माझी सासरवाडी लातूर आहे आणि यांचं गाव लातूर. लातूर. तुमचं थोडं बॅकग्राऊंड सांगा. बेसिकली लातूरमध्ये बॉर्न अँड बॉटअप झालो. आई वडील लातूरचेच, वडील बाबळगावचे, विलासराव देशमुख. आहा! अमित देशमुख बघा काय आपल्या माणसांनी केलंय हे सगळं. बरं, हे अमित रावांकडे मी हा व्हिडिओ पाठवणारच आहे, रितेशला पण पाठवणार आहे. रितेशला पण पाठवा. जरूर. हा, तो तुमचा जन्म बाबळगावचा. जन्म नाही, पप्पांचा जन्म बाबळगावचा, Right. माझा जन्म लातूरचा. छान. तर आई देशी केंद्र शाळेमध्ये. आणि मला हे 25 सांगू नका वर्ष. शाहूला शिकलात म्हणून. नाही, शाहूला नाही, सोनोना कॉलेजला होतो. अरे वा. माझ्या 3 महिने शाहूच्या. मी थोडासा आगाव. आगाव आहेत म्हणून इथपर्यंत पोहोचतात. अच्छा. तुमचं शिक्षण मग लातूरला शिक्षण झालं. प्राथमिक शिक्षण लातूरला देशी केंद्र शाळा. ओके. तिथे माध्यमिक पहिली ते पण 10वी. तिथेच. पहिले ते 10वी तिथे, 11वी 12वी सोनोना कॉलेजला केली. Right. इंजिनिअरिंगला पुणे विद्यापीठात आलो बरं. आणि त्याच्यानंतर MBA केलं आणि ह्या लोकांना मिळालो. सो माझा पहिला जॉब, जिथे कुणालचं पहिलं स्टार्टअप होतं ऑन बाईक रेंटल, तिथे मी GPS विकायला जायचो. दॅट्स हाऊ वी बिकेम फ्रेंड्स. Great. आणि ती स्टोरी 2016 साली सुरू झाली. अरे. कधीतरी जाऊन स्वतःचं काहीतरी करायचा हा विचार होता. 2020ला योग आला, ज्यावेळेस पॅन्डेमिक आलं. पॅन्डेमिकमध्ये ज्यावेळेस हेल्थ सगळ्यात मोठा सेगमेंट होता, इलेक्ट्रिक सायकल मोठं सेगमेंट होतं. मग त्यावेळेला आम्ही निर्णय घेतला की यार आपण फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट बनवू शकतो. वंडरफुल. आणि 8 लाख कोटीचं मार्केट आणि 8 लाख कोटीच आहे. पूर्ण जगभरात, आणि 95 ते 98% सप्लाय फक्त आणि फक्त चायनाचा. मग मेक इन इंडियामध्ये कुठे आहेत आपण? मग त्याच्यासाठी आपण एक सुरुवात केली आणि सुपर यार. आणि आपण ही जी छोटी सुरुवात केली, आता आज जवळपास 24 सप्लायर आले होते की इथे जवळपास ते आता प्लांट टाकायचं बोलतात. आणि 6 तारखेला जवळपास 84 सप्लायर येतात. तर आपण एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी टाईप, म्हणजे एक इलेक्ट्रिक व्हॅलीज आपण बनवायचा प्रयत्न करतोय, जिथे आपण ह्या पुण्याच्या शहरापासून जगामध्ये प्रत्येक ठिकाणी जाईल अशा पद्धतीने करू शकतो. आपल्या प्रोडक्ट जे आहेत ऑलरेडी 17 देशात जातात. आणि भारतात देशाची नावं 10. युरोपमध्ये 6 देश, स्पेनमध्ये आपलं स्वतःचं ऑफिस आहे, त्याच्यानंतर US आहे, त्याच्यानंतर दुबई, त्याच्यानंतर मीना रिजन जे आपण, त्याच्यानंतर ऑस्ट्रेलियाला आपलं स्वतःचं डिस्ट्रीब्युशन आहे. आणि सगळ्यात शेवटचा देश जो सगळ्यात महत्त्वाचा आहे, भारतात जेवढ्या पण इलेक्ट्रिक व्हेकल बनल्या आत्तापर्यंत एक्सपोर्ट खूप कमी झाल्यात, पण जपानला एक्सपोर्ट करणारी आपण पहिली कंपनी आहोत आणि आपल्यानंतर पण कोणी केलेलं नाही आहे. सुपर. आणि आपल्या ह्या इमोटराडच्या नावानेच तिथं प्रोडक्ट विकला जातं. असं नाही की आपण दुसऱ्या प्रोडक्ट नावाने विकतो, आपल्या इमोटराड नावानेच आपलं प्रोडक्ट विकतो. आणि जपानला विकणारी आपण पहिली कंपनी ठरलो. राईट. आणि US मध्ये पण तुम्ही आहात. US मध्ये पण एक्सपोर्ट करतो आपण. US मध्ये मोर दॅन 80 to 100 crore रुपीजचं आत्तापर्यंत ऑलरेडी एक्सपोर्ट केलेलं आहे. किती? 100 crores. भावा तुम्ही जिंकलात रे. वंडरफुल यार, आई लाइक. अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है भाई साहब? नहीं, वो तो मैं बाद में दिखाऊंगा. सबसे बड़ी बात भाई साहब, आपने जिस तरीके से 2019 वाली बात कही, कोई दुबई में था, कोई इंडिया में था, सब लोग इकट्ठा आ गए. ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? ये स्टार्टअप की कहानी कहाँ से शुरू हुई? तो हम चारों को फाउंडर बनने से पहले दोस्त रहे एंड सभी जितने अच्छा, भी उम्र क्या है आप लोगों की? मैं इन सब में बहुत यंग हूँ और मेरे पार्टनर्स या अनफॉर्चुनेटली आई एम द एल्डेस्ट वन. वी ऑल आर इन आवर मिड 30s, तो हम लोग 33 34 है, अर्ली सभी की 30s. शादियां हुई ना? यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है. हाँ, तो ये स्टोरी में भी शादी का पार्ट बड़ा है. सो 2019 में ये स्टोरी 2019 के भी पहले जाती है. तो जो भी दर्शक भी देख रहे हैं हमारे, आई थिंक को फाउंडर बनना एक शादी करने की तरह ही है. आप कितने झगड़े होते हैं, आप इतनी डिफिकल्टीज से निकलते हो. ऐसे दिन भी होते हैं जब सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होते, आपको लोन लेके देना पड़ता है. एंड यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स एंड यू हैव टू ट्रस्ट ईच अदर. यू हैव टू एक्चुअली, शायद मैं इनकी बीवियों से ज़्यादा इनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ. तो आई थिंक द काइंड ऑफ, अच्छा, ये 70 घंटे वाले पे क्या ओपिनियन है आपका? मुझे लगता है ये वर्कॉलिक है. नहीं, मुझे ऐसी शायद शादी नहीं हो रही है. अच्छा, तो 2019 में ये स्टोरी जाती है 2014 में, जब मैं और कुणाल पहली बार मिले. हम लोग क्लासमेट थे. हम लोगों ने क्लास में एक छोटा सा स्टार्टअप किया. जब लोग हमारी बाइक लेके जाते थे डिनर करने के लिए, हम बालेवाड़ी में रहते थे पुणे में, यहीं पे पढ़ रहे थे. तो यहाँ पे ओला उबर आई नहीं थी, बहुत महंगी थी. डिनर करने के लिए दूर जाना पड़ता था, ज़्यादा रेस्टोरेंट उस समय नहीं हुआ करते थे. तो लोग हमारी बाइक हमसे लेके जाते थे. एक दो दिन हम दोनों चल के जा रहे थे, हम देख रहे थे कि भाई तेरे पास भी बाइक है, मेरे पास भी बाइक है, और हम दोनों पैदल जा रहे हैं क्योंकि कोई बाइक लेके गया है. तो हमने डिसाइड किया अगली बार जब कोई आएगा तो उसको रेंट पे देंगे. और ऐसे कर करके हमने 84 बाइक्स कर दी, जो हमने सेकेंड हैंड खरीदी थी, और उनको रेंट देते रहते थे. क्लास में भी व्हाट्सएप पे यही कर रहे होते थे. बट हम लोग क्लास में भी टॉप करते थे. अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे वी वर डूइंग गुड इन पढ़ाई ऑल्सो इन अ वे. एक 3 इडियट्स वाली कहानी. एंड मेरा ड्रीम था बचपन से कि मैं बाहर जाके काम करूँ इंडिया के.
सो मुझे एक जॉब मिल गया, कुणाल ने एक ऑन बाइक्स, जो कि सुमित ने बताया, स्टार्टअप को co-found किया और उस कंपनी को ही बड़ा बनाने का ट्राई किया. सो इट वाज अ बिगर स्टार्टअप जिसमें कुणाल की राजीव से मुलाकात हुई, जो कि पैन इंडिया ऑपरेशंस रन कर रहे थे कुणाल के साथ में. एंड ये आपका चौथा पार्टनर है? ये हमारे चौथे पार्टनर जो है, अभी हमारे है नहीं यहाँ, फाउंडर वो हैं जो US में है। यूएस गए हुए हैं. करेक्ट. एंड देन इन दोनों ने ये रियलाइज किया कि अगर रेंटल करना है तो इलेक्ट्रिक में बहुत फायदा होगा, आईसी में शायद इतना फायदा नहीं है, क्योंकि रेंटल बाइक बहुत तो पहले आपने एक रेंटल का कॉन्सेप्ट किया, Correct. उसके ऊपर काम शुरू किया, Correct. यू रिसीव्ड ट्रेमेंडस रिस्पांस, देन यू थॉट ऑफ दैट इट्स बेटर टू गो फॉर ईवी. करेक्ट, दैट्स राइट. एंड राजीव को बोला गया कि भाई तुम जाके ये भाई साहब से बोला, राजू वो जो यूएस राजीव इज द फोर्थ वन. तो उन्हें बोला गया कि भाई तुम जाके देखो चाइना में क्या हो रहा है, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे इतना ईवी आया नहीं था, ऑप्शन भी नहीं थे. तो जब वो वहाँ गया, वो वापस आया, उसने कुणाल को बोला बॉस इसमें कुछ करना है. तो कुणाल ने बोला तू जा और एक्सप्लोर कर क्या करना है. तो 1 साल राजीव 1.5 साल चाइना रहा, वहाँ पे उसने सब कुछ देखा, मार्केट कैसा है, क्लाइंट कैसा है, प्रोडक्ट कैसे हैं. और हमारी शुरुआत हुई जब कुणाल ने मुझे कॉल किया. इस बीच कुणाल और राजीव सुमित से मिल चुके थे, क्योंकि एक बंदा आता था जो हर बार ऑफिस में आके उनको कुछ बेच के जाता था और वो बहुत परेशान हो चुके थे कि यार ये आया है तो छुप जाना है. तो उन्हें तो अभी पता ये मत बताना कि वो मार्केटिंग का हेड है. क्या वही हेड है? वो सेल्स हेड है हमारे. अच्छा, तो इस बीच इनका ये पक्का तो हो गया टीम था. बनती गई. जी, ये पक्का हो गया था कि कुछ बेचना है मतलब तो ये थॉट बंदा प्रोसेस बेचेगा. था. जी. आप चाइना भेजा राजू को, वो जी. वहां से एक्सपेरिमेंट लेके अनुभव लेके वापस Correct. आया, एक मार्केटिंग का बंदा भी आया, और फिर सो ये पॉइंट आया जब कुणाल का मुझे कॉल आया. मैं दुबई से तब कनाडा शिफ्ट हो रहा था जस्ट, एंड मुझे कॉल आया कि भाई आजा करते हैं. और मैंने बोला अभी ही मेरी जस्ट ये शिफ्टिंग चल रही है, मैं लाइफ में सेटल हो रहा हूँ. एंड देन कुणाल का वो शब्द कि एक बार तेरी शादी हो गई और बच्चे हो गए तो तू ये रिस्क नहीं ले पाएगा, अभी ले लेना चाहिए. किसने सोचा था कि आज तक शादी नहीं होगी और बच्चे नहीं होंगे. ये कर्स है उसको. अच्छा, फिर वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई मेड, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगले 20 साल भारत के, अगर यहाँ पे रह के जितनी अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलनी है और उसमें भी अगर आप नहीं कर पाओ तो आप दुनिया में कहीं नहीं कर पाओगे. तो ये कॉल लेना मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य रहा. आई वाज वेरी प्लीज्ड कि मेरे so it was in year 2019. it was in 2018. It was just on the brisk of before we kick started. 2018 2019 I got back. मेरी 4 लेकिन लाख. ये मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया कहाँ से है? आप तो रेंट पे सोच रहे थे. तो ये पता चल गया था कि यार रेंटल बाइक्स में लोग बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं, क्योंकि खुद की नहीं होती तो कैसा भी चलाते हैं. right. तो बेस्ट है कि तुम बेच दो और भाई फिर सर्विस करते रहो, उसमें भी पैसा है. एंड आई थिंक दैट इज व्हेन वी रियलाइज्ड कि ये सेगमेंट बहुत ग्रो करेगा अगर दुनिया को सर्व करने जाते हैं. सिर्फ इंडिया को करने गई बहुत सारी कंपनीज, नहीं वर्कआउट हुआ. बट हम लोगों ने पहले दिन से ही एक छोटे से कमरे से शुरुआत की थी. तो कितना छोटा था वो? आई थिंक 12 फीट बाय 10 फीट का कमरा था. और इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय भी आप लोग जो कंपनी के कल्चर के बारे में सोच रहे थे. हम हंसते भी बड़ा था. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है भाई. सब लोग इकट्ठे बैठे थे, सोच रहे कि कंपनी का कल्चर कैसा होगा. और हंसते थे बाहर आके कि हम लोग 4 लोग तो है, क्या बात कर रहे हैं. बट आई थिंक आज वो कल्चर रिफ्लेक्ट करता है. ये खत्म होते होते एक पीरियड आया जब हमको रियलाइज हुआ कि फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड पॉसिबल तभी होगा जब हम खुद बनाते हैं. बाहर से प्रोडक्ट लाके और उसको रीब्रांड करना, जो कि बहुत से लोगों ने किया है, वो नहीं चलेगा. तो भाई साहब मुझे बताइए कि अभी इस सेगमेंट में जो प्रोडक्ट आप बता रहे हैं, इंडिया में कितनी कंपनीज हैं जो आपको कॉम्पीट कर रही है? राइट. सो आई थिंक लोकलाइजेशन ऑफ इंडिया टू द स्केल जो हमने किया है उसमें तो कोई भी नहीं सो है. यू आर द नंबर वन. यस, वी हैव मोस्ट ऑफ आवर कंपोनेंट्स लोकलाइज्ड. कुछ पार्ट्स है जो कि इंडिया ही नहीं बनाता है. 90%? उसके थोड़ा ऊपर है हल्का सा. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. And- अच्छा, ये तो आइडिया आ गई. अब मुझे ये बताइए कि पैसे थोड़ी होते भाई, आप स्टार्टअप कर रहे हो तो पैसे तो चाहिए ना. हाँ, इसीलिए मुझे पता है किसको क्या पूछना है. तो जब शुरुआत की थी तब तो बिल्कुल पैसे नहीं थे. हाँ, जरा से थे पैसे कितने? तब कुछ भी नहीं थे. आप ऐसा समझो 10 रुपए तो होंगे. कुछ लाखों रुपए थे. कुछ हमने पिछली कंपनी से थोड़े तो बहुत अभी शेयर्स हमारा बेच के turnover आए कितना थे. है? हमने जस्ट 500 करोड़ रुपए क्रॉस किया है. What? लाइफ टाइम टर्नओवर हमारा. ग्रेट यार. अब 4.5 साल हो गए कंपनी को, जस्ट वो नंबर तो क्रॉस किया है. 4.5 में आप 500 करोड़ 500 करोड़ का टर्नओवर तो क्रॉस तो किया. उस समय कुछ लाख थे. उस समय कुछ लाख थे. फिर? बेसिक सा सेटअप स्टार्ट किया और सोचा कि यार शुरू में कुछ बाइक ट्रेडिंग करेंगे. तो बहुत छोटे से ट्रेडिंग बिजनेस से स्टार्ट किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग में एंटर किया, कुछ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट लिया. फॉर्चुनेटली इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, तो जिसमें हमको बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने हम पे विश्वास किया, हम पे इन्वेस्टमेंट किया. तो आज तक हमने 3 राउंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लिया है. टोटल अप टू 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लिया है, जो पूरा कंपनी में पुट किया. वहां से वो कंपनी की शुरुआत करके स्केल करके लेकर आया है. आज ओवरऑल कंपनी में करीब 250 लोग काम करते हैं, 600 लोग फैक्ट्री में काम करते हैं. And that journey is going on right now. Super. And how many products we launched? Till Which date one we is have- the prime yeah. product of us? So there are many. There's not one. We have launched 18 products till now, and this 18? pipeline is constantly growing. 18 or 80? 18 till now, and that's constantly growing.
And which one is the prime one, most sellable? I think you should. This one, the doodle one. This product is something which everyone loves, including Mr. MS Dhoni. It is a foldable Why he bike. loved it? It is a Because he liked foldable bike. speed. It sits in the back of your car, fat tire. Okay. Very cool So you looking can bike. fold it. It's you can fold it and put it in the back of the car. Fine. यहाँ से fold हो जाती है. ये यहाँ से फोल्ड जी. तो हमारा यूएसपी क्या है? बहुत सारा. सो हमारा जो क्वालिटी है, हमारा जो टेक्नोलॉजी है, हमारा जो ड्राइव ट्रेन एफिशिएंसी है, हमारी बाइक वर्सेस एनी अदर बाइक में आपको रेंज डिफरेंस मैसिव मिलेगा, आपको क्वालिटी डिफरेंस मिलेगा. और एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए सिर्फ क्वालिटी और रेंज और ये टेक्निकल स्पेक्स ही सब कुछ नहीं होता है. उसका आफ्टर सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका रीच, ये सब बहुत मैटर करता है. तो बहुत मैटर करता है. तो जी. उसमें क्या किया आपने? हमारा आज की डेट में 45 लोगों का सिर्फ आफ्टर सेल्स टीम है, विच इज द लार्जेस्ट इन आवर इंडस्ट्री. राइट. हमारा बहुत बड़ा फोकस है कि आफ्टर सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करें. हमारे पैन इंडिया में 18 डिफरेंट आफ्टर सेल्स सेंटर्स है अलग अलग लोकेशंस पे. नॉट ओनली दैट, 24/7 एक वीडियो कॉल सेंटर चलता है जो हमारे फैक्ट्री में हमेशा लाइव होता है, जहाँ पे पीपल कैन वीडियो कॉल, शो द प्रॉब्लम एंड गेट इट सॉल्व देन एंड देयर इटसेल्फ. ऑल द बाइक्स दैट आर मेड आर स्मार्ट इन इटसेल्फ. एग्जांपल देता हूँ आपको. कल आपके मोटर में कोई प्रॉब्लम हुआ बाइक में, तो इमीडिएटली योर डिस्प्ले विल शो एरर कोड 0007, जिसका मतलब आपके मोटर से कोई प्रॉब्लम है, आप सीधा कॉल सेंटर को कॉल करके बोले मेरे मोटर में प्रॉब्लम है, वो रिप्लेस हो जाएगा. तो वी हैव मेड अ सेल्फ डायग्नोसेबल बाइक, वेरी इजी टू यूज, वेरी कंफर्टेबल टू यूज. राइट. डीलरशिप जो हमारी जी. 400 प्लस डीलरशिप. या. अच्छा, ये इंडियन मेंटेलिटी होती है, जी. कितना देती है? जी. तो कितना देती है? ये आपको 70 रुपए में 1000 किलोमीटर देती है, 7 पैसे पर सुन रहे किलोमीटर. हो भाई साहब आप? ये फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि ये प्रमोशन नहीं है. आई हैव टू क्लियर दिस टाइम एंड अगेन. आई ऑलवेज डू दिस बिकॉज मेनी पीपल थॉट ऑफ दैट वी आर मेकिंग दिस फॉर द प्रमोशनल पर्पजेस, which is not at all. So if you have any questions, queries, you can directly ask. You can get a feedback. सर आज ही मिल रहे हैं लातूर. अरे मुझे तो पता ही नहीं था. मैं क्योंकि क्या हो जाता है, जो हमेशा मैं अच्छी बात मानता हूँ कि जो यूट्यूबर्स बनाते हैं जी. उसमें प्रमोशन भी होता है, लेकिन कुछ चीजें छुपी रहती हैं, इसलिए मैं हर बार मैं बताता हूँ कि भाई ये प्रमोशन नहीं है. जी. हाँ, तो आपने फिर जब धोनी ने तो सवाल पूछे, इन्होंने इसका जवाब दिया. जी. लेकिन आप कह रहे थे कि ये सबसे माइलेज के हिसाब से भी और जी. तो आप मुझे ग्रोथ बताइए आगे जाके 25 साल में आपको कहाँ पे पाते हैं? 25 साल तो बहुत दूर हो जाता है. हम यंगस्टर्स हैं, हम थोड़ा नियर टर्म को बहुत अग्रेसिवली देखते हैं और फिर आगे लेकर चलते हैं. तो हम काफी कॉन्फिडेंट है कि ये कंपनी को अगले 3 साल में 2,500 करोड़ के रेवेन्यू पे ले जाएंगे और वहां से स्केल करेंगे. दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट्स और फर्स्ट प्रोडक्ट पाइपलाइन दैट हैज कम आउट ऑफ दिस बिजनेस. आई थिंक बहुत सारी नई कैटेगरीज है जिसमें हम एंटर करना चाहते हैं और बहुत सून एंटर भी करेंगे, विच इज इनटू किड्स मोबिलिटी, विच इज इनटू एडल्ट मोबिलिटी, मेन फ्रेम कार्गो मोबिलिटी, जो इस इकोसिस्टम का पार्ट बनेगा इवेंचुअली. सो आई थिंक दैट इज अ लॉन्ग जर्नी टू कवर. आज आई थिंक इंडिया का दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, एंड आई थिंक हम इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री ऑलरेडी है और बहुत बड़ा बनना चाहेंगे. So I have a very one common question for you. Those who are watching you and those who are youngster, they are looking to set up their own whatever business they want. So what do you want to tell them? I think never stop Because dreaming we have big. a Maharashtrian typical middle class mentality. तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा मराठी में बोला जाए ताकि लोगों को. अरे वाह. नहीं वो तीनों से एक ही सवाल है. मैं तो Absolutely. तुम्हाला काय सांगा? सगळ्यात मोठा मिसकॉन्सेप्शन असं आहे की ज्यांच्या घरामध्ये बिझनेस आहे त्यांनीच बिझनेस केला पाहिजे. दुसरा मोठा मिसकन्सेप्शन असं आहे की बिझनेस करण्यासाठी खूप पैसे लागतात. आणि कुणालने जसं थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं की आम्ही ज्यावेळेस बिझनेस चालू केला त्यावेळेस फक्त ॲस्पिरेशन्स मोठे होते, पैसे खूप थोडे होते. तर राईट बिझनेस करण्यासाठी मला असं वाटतं की फक्त पहिली गोष्ट बिझनेस केला पाहिजे का? तर मी तर असंच सांगेल, ज्यांचे ॲस्पिरेशन्स मोठे आहेत त्यांनी बिझनेसच केला पाहिजे. इतरांना मोठं करून उपयोग नाही. आज तुम्ही भारतात पुण्यामध्ये स्पेसिफिकली एवढं IT हब बघता जे दिवस रात्र 18 तास 16 तास काम करतं आणि परदेशातल्या कंपन्यांना मोठं बनवतं. त्याच्यापेक्षा आपण स्वतःची कंपनी चालू करून स्वतःला आणि स्वतःच्या देशाला पुढे नेणं कधीही चांगलं. आणि यू हॅव टू हॅव अ आयडिया मोटिवेशन फर्स्ट, आयडिया लेटर, एंड फॅमिली बॅकअपची काही गरज नाही ऍक्च्युअली. फैमिली का इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है. फाइनेंशियल सपोर्ट इज नॉट वेरी नेसेसरी. इंडिया ने बहुत अच्छा स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑलरेडी बनाया हुआ है, जहाँ पे आप राइट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स, मेंटर्स को अप्रोच कर सकते हो, उनसे सीख सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो. आई थिंक हमने वो जर्नी लिया. तो एज क्या डिफाइन करते हैं आप? क्या लगता है कि कौन से? देयर इज नो राइट एज. आई थिंक आज 20 साल के लोग भी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी कंपनीज बना रहे हैं. हमने भी जब चालू किया था हम 27-28 साल के ही थे ये जब कंपनी स्टार्ट किया. भाई साहब मुझे आपसे जानना है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, हाउ दे आर what is their current approach for any such as establishment? And second thing is that what we need to see if you want to do market anything.
Right. So, firstly, कोई भी investor जब Please tell आपने this in English. so any investor who's trying to invest into you is looking for one very simple thing, which is return. Correct. Right. They are also उनको भी So how environment is good for this so in terms of institutions and So- financial institutions? right. So if you'll see any in not just this, right, any domain if you go into, if you have a business that is scalable and can make money for everyone, the money is available. Correct. For So money people. is there. Money exists. Finance is there. Correct. Fine. I think great business model, great passion towards building it, and getting somebody to believe into you will solve it for you. Correct. And I think Marketing. marketing. So I think What should be the marketing strategy? it depends. When we were on day one, my marketing budget was less than my most person's salary today. Fine. So it doesn't matter. Marketing is just about unlocking small hacks at a point. So sometimes you might do influencer, sometimes you might find somebody like MS Dhoni, sometimes you might be standing with a pamphlet on the side of the road. Correct. Whatever it takes. If you will talk about big companies like Bumble, Airbnb. Correct. So everyone should go and research about how they market it on day one. Nobody has money on day one. Okay. One issue regarding the policy is there. Why private investors are not coming to India? Because there are so many restrictions vis-a-vis legal restrictions. Yeah. Is this true? Or whether government is doing something Right. on this aspect or not? Right. I think these laws are put in place for governing purposes, right? It sometimes Like a becomes labor law and all correct. that stuff. So I think all these laws exist, right? In manufacturing as a setup, startup में belief नहीं था. Mostly earlier startups were SaaS startups, software startups who were raising funds. Manufacturing to build things, people were not believing in it. But today those scenarios are changing. Companies like us are gathering interest, not just interest, but also getting money from the right set of people to grow. So today, if you'll see any possible, even our investors come from the likes of Singapore and USA. So there is people who exist who are looking at India's story. Next 20 years is big. Great. So I think the potential is huge. So isn't there any fear of government action or something like this? I think if you are following the law, there is nothing that you need to be afraid of. So there is no Malya or something like. So I think that there are always these stories that come up, right? But there is always something cooked in them. If you are honest, if you are trying to build something honestly, there is always going to be a way which is legally available. And frankly, today, if you will see all these FDIs that government wants to bring into the country, there has been great systems that have been put into place. So I think it's a very simple, flawless process as long as your systems are clear, as long as your duties are paid. So GSTs what you are paid. saying, positive vibes are there. Right. Government is with you. Right. Finance is available. You need to have one good idea. Correct. Need to make a marketing policy and go with it. Great business plan and great passion. If you have these two, everything's work out over a period of time. Superb. आणि आता मी ना तुम्हाला ह्या 4 तरुण मित्रांनी बनवलेला जो प्रोडक्ट आहे तो तुम्ही बघा आणि मी बाबळगावकराकडनं आपल्या लातूरकराकडनं ते सांग आता हा डिस्प्ले करा हां याची सगळी गोष्ट सांगा आणि काय बनवलंय ह्या लोकांनी हां सो जर का तुम्ही हा प्रॉडक्ट बघितला तर हा पूर्ण इंडियनच्या हिशोबाने बनवण्यात आलेला आहे. सगळ्यात पहिली गोष्ट तुम्ही जर बघितलं तर ह्याला तुम्हाला एक इग्निशन की दिलेलं आहे. इथं तुम्ही ऑन ऑफ करू शकता, इथं तुम्ही ऑन करू शकता. त्याच्यानंतर तुम्हाला एक डिस्प्लेसाठी बटन देण्यात आलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता ही बाईक किती क्लीन पद्धतीने बनवण्यात आलेली आणि पूर्ण डिझाईन बाय अस, मॅन्युफॅक्चर्ड बाय अस. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला एक सुंदर डिस्प्ले मिळतो. हा जवळपास तुम्ही आतापर्यंत स्प्लेंडर किती रुपयाची चालवता, लाख रुपयाची चालवता, त्याच्यात सुद्धा असं नाही आहेत. त्याच्यात सुद्धा असा निवर छोटासा काटा फिरत असतो. सो हा पूर्ण डिजिटल LCD डिस्प्ले आहे आणि हा जो प्रोडक्ट आहे तो इंडियन रोडच्या हिशोबाने बनवण्यात आलेला आहे. म्हणजे टायर वगैरे टायर बघा तुम्ही, ह्याचे टायरचे तुम्ही कंटूर बघा. सो बेसिकली तुम्हाला चांगलं ग्रिप प्रोव्हाइड करतात हे. त्याच्यानंतर तुम्ही जर ह्याच्यामध्ये सस्पेन्शन बघितलं तर हा इंडियन रोडच्या हिशोबाने बनवण्यात आलेला आहे. पण ह्याच्यातलं जे युनिक फीचर आहे जे तुम्हाला मी आता दाखवणार आहे, आपल्याला इंडियन रोड बाबतीत स्ट्रीट लाईटचं इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आहे, रोडचं इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आहे, तर आपल्याला इन्क्रीज विजिबिलिटी लागते. तर आपल्या ह्या सायकलमध्ये ब्रेक लाईट आहे. हा दाखवा. ह्या सायकलमध्ये ब्रेक लाईट आहे. जर तुम्ही ब्रेक लावली तर तुम्हाला इथे पाठीमागे लाईट्स आहेत. येस हे बघा ना, हे पाठीमागे लाईट लागले. करेक्ट. सो ब्रेक लाईट्स आहेत. नॉट ओनली दिस, हे पहिली इलेक्ट्रिक सायकल किंवा नॉर्मल सायकल आहे भारतातली ज्याच्यामध्ये इंडिकेटर्स आहेत. मी आता दाखवूया लेफ्ट साईड. दाखवा ना, लेफ्ट साईडचं बटन दाबा. येस. तुम्हाला ह्याच्यामध्ये पूर्ण इंडिकेटर मिळतात. आणि हा राईट साईडचा, राईट साईडचा पार्किंग लाईट पण आहे असं म्हणू नका. पार्किंग लाईट पण आहेत सर. ही पार्किंग लाईट आहे. ह्याच्यात पार्किंग लाईट आणि ही डिजिटल लाईट केली तुम्ही. त्याच्यात डिजिटल लाईट सुद्धा आहे. आता जर का तुम्ही पाहिलं तर सगळ्यात पहिली रिक्वायरमेंट काय आहे की संध्याकाळी रोडवरती चालताना तुम्हाला विजिबिलिटी हवी आहे. तर त्याच्यासाठी तुमच्याजवळ इथे एक आपल्याजवळ हेडलाईट पण आहे.
आणि ही हेडलाईट जी आहे ती जवळपास 25 मीटर विजिबिलिटी आपण देतो. 25 मीटर. तो जो एक इंडियन रोडसाठी एक परफेक्ट गोष्ट आहे. नॉट ओनली दिस, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला अप्पर आणि डिपर फंक्शन पण मिळणार आहे. जर का तुम्हाला रस्त्यावर कोणी येत असेल तर तुम्ही बघू शकता समोर पास पडतो. करेक्ट. आता याची किंमत काय आहे प्रोडक्टची? आपल्याजवळ जी इलेक्ट्रिक सायकल आहे ती साधी इलेक्ट्रिक सायकल आपली 24,999 रुपयापासून चालू होते आणि अपवर्ड्स ऑफ 5 लाख रुपीज पर्यंत आपला जो इलेक्ट्रिक सायकल्स आहे 24,000 ते 900. 24,500 रुपये 24,999 पण म्हणजे तुमचा फोकस 25,000 मेट्रो टियर 2 टियर 3 सिटी, छोट्या शहरं, लातूर, धाराशिव, नांदेड अशा शहरात पण फोकस आहे. आपला जो फोकस आहे तो सगळा फोकस पूर्ण भारतभर असणार आहे. त्याचं कारण काय की आपण आज लहान मुलाला एक इलेक्ट्रिक सायकल घेऊन देऊ शकतो पण एक स्कूटर किंवा मोटरसायकल घेऊन नाही देऊ शकत आरटीओच्या नियमाप्रमाणे. आरटीओच्या नियमाप्रमाणे. आणि सध्याचं शेड्यूल एवढं टाईट असतं मुलांचं की ते 15 किलोची बॅग 5 किलोची बॅग घेऊन सगळीकडे फिरू शकत नाहीत नॉर्मल सायकलवरती. तर इलेक्ट्रिक सायकलवरती लहान मुलं पण वापरू शकतात. आपलं जे वय आहे 35, 40, 50 ज्यांना आता एक अर्ली प्री डायबिटिक म्हणा किंवा त्याच्यानंतर हाय कोलेस्ट्रॉल म्हणा किंवा हे जे हायपर टेन्शन लवकर सुरू होतं त्याच्यासाठी सगळे डॉक्टर एकच सांगतात की एक्सरसाइज करा. पण एक्सरसाइज करायला वेळ नाही. कधी करणार? जिम लावली तर रोज 1 तास जिमला काढायला वेळ नाही. तर हे इलेक्ट्रिक सायकल तुमच्या कार्डिओ एक्सरसाइजला पूर्ण रिप्लेस करू शकतो. सुपर. 5 किलोमीटर तुम्ही इलेक्ट्रिक सायकलवरती जर जाणं येणं केलं जे की नॉर्मल प्रत्येक भारताचा कस्टमर चालवतो गाडी, ती जर का त्यांनी इलेक्ट्रिक सायकलने रिप्लेस केली तर त्याच्या रोज 200 ते 500 कॅलरीज बर्न होतील. आणि त्याचा मेसेज पण येत राहतील. हां एक्झॅक्टली. आणि त्याच्यानंतर जर का तुम्ही सिनियर सिटीजन बघायला गेलात तर त्या लोकांना सगळ्यात मोठा त्रास कुठला असतो सांगा मला? चढण्याचा ना. चढण्याचा म्हणजे त्यांना सगळ्यात मोठा त्रास असतो गुडघ्याचा. मग त्यांनी कसं चालणार? चालणं हे सगळ्यात वाईट एक्सरसाइज आहे गुडघ्यांसाठी. तर ते सायकलिंग करू शकतात. सर बेसिकली ही 3 जनरेशनल प्रोडक्ट आहे. सुपर. एनिथिंग फ्रॉम 9 इयर टू 70-80 ईयर ओल्ड एव्हरीवन कॅन राईड. अच्छा, आता हा एपिसोड दोज हु आर वाचिंग दिस एपिसोड दे वुड हैव बीन लाइक टू कांटेक्ट यू, आप लोगों से, तो कैसे करना है? कोई इनके मन में सवाल है, कोई चाहेगा कि इसकी डीलरशिप भी हमें मिले, ये होता है हमारे प्रोडक्ट में, हमारे इस सीरीज में, तो उस समय so it is very simple. You can log on to www.emotorart.com. Fine. Every questions can be answered on that website. Correct. If someone wants to purchase from Amazon, Flipkart, he can purchase from Amazon, Flipkart, our own website. Correct. Or he can purchase from 585 retailers. We have all across country, more than 220 cities we are present in. All 28, 29 state plus union territories. We have our service network. So you don't have to worry about service. You don't have to worry about anything. So you can order this particular product online, and we are best rated product on entire Amazon and Flipkart category. लातूरला जाता की नाही? लातूरला स्टार्टअप चालू केल्यानंतर नाही. आता हे जे 3 मित्र आहेत ना, थांबतो आपण इथे, हे तिघं खऱ्या अर्थाने मला असं वाटतं की या स्टार्टअपचे जे काही बदल आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये होतात त्याचे रोल मॉडेल आहेत. त्यामुळे तुम्हाला यांना कधी आप जाइए लेक्चर वगैरह दे दीजिए, अभी समय निकाल दीजिए, लोग बुलाएंगे आपको. ही इतकी छान सकारात्मक गोष्ट तुम्ही बघितल्यानंतर मुझे लगता है कि आप लोगों को जो इस सीरीज से मिल रहा है वो अपने आप में कंज्यूम करना है, सोचना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं. जिस तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की वगैरह बात हो रही है. कैमरामैन निकेतन माने के साथ में राहुल कुलकर्णी, NDTV पुणे.